یہ چکن کڑھائی ہے، یہ شامی کباب ہے، ڈفرینٹ کڑھائی ہے، کوفتہ اور انڈے ہیں۔ خوشیوں کا تہوار، بھائی چارہ، محبت اور پیار، گھروں میں دعوتیں، مل بیٹھے رشتہ دار، بڑوں کا بچوں سے پیار، عیدی کی بھرمار، کوئی بنا مہمان تو کسی نے کی میزبانی، شیر خورمے کے بعد دسترخوان پر سجا قورمہ، کباب اور بریانی، دن بھر کی دعوتیں، ملنے ملانے کے بعد فارغ ہوئے تو تفریحی مقامات کا رخ کر لیا۔ کراچی کے پورٹ گرینڈ پر لوگوں کا ہلہ گلا، میوزک کا تڑکا، سی ویو پر نوجوانوں نے اپنا شو دکھایا۔ السلام علیکم، عید مبارک۔ بہت اچھا لگ رہا ہے، ہم دولے پہ بیٹھے ہیں، بہت مزہ آ رہا ہے۔ میرے پاس اتنی ساری عید کی تھی، میری مما نے بولا کہ تمہیں گلک لا کے دے دیتے، تم اس میں جمع کر لو۔ گھر کے گھر آئے، ابھی ایک دوسرے فرینڈ کے بھی گھر جائیں گے، دولے پہ بھی جائیں گے۔ ابھی عیدی جو جمع ہوگی اس سے چیزیں لیں گے بہت ساری۔ عید کی امیر شخصیات کی موج مستی، صبح کرارے نوٹوں سے بھری جیبیں شام میں خالی، ہر خواہش پوری کی، گھڑ سواری، جھولے جھولے، چیزیں کھائیں، تفریحی مقامات پر بچوں کا رش لگا رہا۔ سکھر میں ننھی منھی سہیلیوں نے محفل جمائی، جیولری دکھائی، سیلفیاں لی، خوب مزے کیے۔ ایک بچی نے کہا امی کہہ رہی تھی اپنی عیدی گلے میں جمع کر لو، پھر کوئی بڑی چیز لے لینا۔ ہم دوستوں نے سارے گپ شپ کر رہے تھے، بھائی نے کہا تھا عید جمعے کو ہوگی، ہم نے کہا تھا 30 روزے ہو گئے اور عید ہفتے کو ہی ہوگی۔ آج ہم نے بھائی سے ٹریٹ لیے۔ کتنے لوگوں کو کھانا کھلایا، کتنا خرچہ آ چکا ہے آپ کا؟ 8-10 لوگ ہیں۔ نہیں دل پہ کچھ نہیں کر رہے، مزے کر رہے ہیں، چل کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آئس کریم کھانی ہے۔ جمعے کو عید ہونے کی شرط ہارا سکھر کا بیچارہ، دوستوں کی ٹولی کو کھانا کھلانا پڑ گیا۔ ریسٹورانٹ میں درجن بھر دوستوں کو عید کی پارٹی دی۔ کہتا ہے حکومت پر بھروسہ تھا کہ رات کو عید کا اعلان ہو جائے گا، لیکن دھوکہ ہو گیا۔ کراچی میں عید پر دوستی کے رنگ، اولڈ کراچی میں دوستوں نے ایک جیسے کپڑے پہنے اور باپ دادا کی روایت برقرار رکھی۔ ملک بھر میں نماز عید کے اجتماعات، وطن عزیز کی ترقی، سلامتی، خوشحالی اور عالم اسلام کی سربلندی کی دعائیں۔ صدر عارف الوی نے فیصل مسجد اسلام آباد اور وزیر اعظم شہباز شریف نے لاہور میں عید کی نماز پڑھی۔ عمران خان نے زمان پارک میں ہی نماز عید پڑھی۔ صدر مملکت عارف الوی کا عید الفطر پر پیغام، کہا گروہی مذہبی سیاسی اختلافات بھلا کر ملک کو سیاسی اور معاشی استحکام کی جانب لے جانے کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا پاک افغان بارڈر کا دورہ، افسروں اور جوانوں کے ساتھ نماز عید ادا کی، جوانوں کے ساتھ دن گزارا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے کہا پاک فوج سرحدوں کے دفاع کے لیے پرعزم ہے، محافظ دشوار راستوں، سخت موسمی حالات اور اپنے پیاروں سے دور ہو کر بھی فرائض مقدم رکھتے ہیں۔ آرمی چیف نے شہداء کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا، بولے عید کے دن مادر وطن کے دفاع اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دینے والے شہداء کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سروسز چیفز کو فون، عید کی مبارکباد۔ وزیر اعظم نے کہا پاکستانی قوم کو اپنی افواج پر فخر ہے، قوم اپنی سرحدوں پر موجود محافظوں کی بدولت امن اور سکون سے عید کی خوشیاں منا رہی ہے۔ سروسز چیفز کی قوم کو عید کی مبارکباد، کہا عید کے موقع پر پرامن ماحول شہداء اور غازیوں کی مرہون منت ہے۔ تمام شہداء اور غازیوں کو سلام، اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمتوں کا سایہ رکھے۔
साल काट लिए 35 साल, उनको फिर रहा होना चाहिए। ना उनको कोई पूछने वाला है, ना उनको कोई रसाई है। आला अदालतें हैं, आपने कितने सू मोटो लिए इन केसेस में? सू मोटो का बुनियादी मकसद होता है किसी एक का इंटरेस्ट नहीं, मफाद आमा। तभी अदालत ने कैदियों के हुकूक के लिए सो मोटो लिया। अस्कुद नोटिस का असल मकसद अवाम की फलाह होता है। इसके अलावा आइन और कानून में सो मोटो की कोई गुंजाइश नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के सेंट्रल जेल लाहौर के दौरे पर गुफ्तगू। दहाइयों से जेल में बंद कैदियों की दावत भी दे डाली। बोले जाती अना खत्म करना पड़ेगी। अगर सब मुत्तहिद न हुए तो कोई भी अकेला मुल्की चैलेंजेस का मुकाबला नहीं कर सकता। आज हमें अपने कैद और लापता साथियों को याद रखना होगा। इमरान खान का ईद के मौके पर पैगाम ट्वीट किया। हमारे साथी इस कैद के नतीजे में अपने अहले खाना के साथ ईद मनाने से महरूम हैं। उनका वाहिद जुर्म ये है कि ये सब हकीकी आजादी के लिए खड़े। आइन के मुताबिक इलेक्शन जो है वो एक ही दिन होने चाहिए और तमाम असम्बलियों के इलेक्शन जो है वो इकट्ठे होने चाहिए। ईद पर सियासी रहनुमाओं की मिल बैठने की बातें, मुज़ाकरात के इशारे। क्या हुकूमत और अपोजिशन के मिलेंगे सितारे? वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं तमाम सियासी जमातों का एक साथ बैठना वक्त की जरूरत है। तमाम असम्बलियों के इलेक्शन निगरान सेटअप के अंदर एक ही दिन होने चाहिए। अदालत ने चंद घंटों में मुज़ाकरात का कहा, जो अजीब सी बात है। शाह महमूद कुरैशी बोले तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। 26 मई को होने वाली नशस्त में नुमाइंदगी करेंगे। साथ ही खदशा जाहिर किया कि पीडीएम मुज़ाकरात को ताख़ीरी हरबे के तौर पर इस्तेमाल न करे। कहा अगर पेशरफ न हुई तो 14 मई को ही इलेक्शन होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक को फोन, ईद की मुबारकबाद। सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। कहा आपसे मुलाकात के बाद इत्तेहादी जमातों से मशावरत कर रहा हूं। 26 अप्रैल को इत्तेहादी जमातों का इजलास बुलाया है। सिराजुल हक ने कहा बतौर वज़ीर-ए-आज़म आपकी ज्यादा जिम्मेदारी है कि सियासी बहरान का हल निकालें। सिराजुल हक कहते हैं मुल्क सियासी, मौशी और आईनी बहरान का शिकार है। एक सूबे में नहीं पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन का वक्त तकाजा है। मौलाना फजल रहमान ही को सबसे ज्यादा इलेक्शन की जल्दी भी थी और आज वही सबसे ज्यादा मुखालफत में पेश है। पंजाब में कोई नून लीग का टिकट आज लेने में नहीं, कोई नहीं। इन्होंने अपनी खफ्त मिटाने के लिए बाइकाट कर। मौलाना को इलेक्शन की सबसे ज्यादा जल्दी थी और आज सबसे ज्यादा मुखालफत कर रहे हैं। क्या ये खुला तजाद नहीं? पीटीआई के मरकजी सदर परवेज इलाही कहते हैं मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस गैर जिम्मेदाराना और नाकाबिल कबूल है। नून लीग की शिकस्त नविश्ताए दीवार बन चुकी। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को आखिरी मौका दिया है। मजीद हुक्म उदूली पर नाअहली पक्की है। शेख रशीद ने कहा ये सियासतदान अदलिया से लड़ने जा रहे हैं। सब इमरान खान को रोकने के लिए इकट्ठे हैं। मौजूदा हुकूमत ने जो जुल्म ढाए हैं कौम इनसे हिसाब लेगी। Chance is 50-50. The elephant cannot stand. If we put him to sleep, the elephant will fall down and he will not stand again. नूर जहां ईद के दिन विदा हो गई। बीमार हतनी तमाम तकलीफों से आजाद। नूर जहां कई दिन से बीमार, हिलने जुलने से भी कासिर थी। बैनुल-अक़वामी डॉक्टर्स की टीम ने भी नूर जहां को बचाने की कोशिश की, लेकिन चिड़ियाघर में उसका इतना बुरा हाल कर दिया था कि उसका बचना नामुमकिन था। दुनियापुर में ईद के दिन खाना बदोशों के साथ अंदुखनाक हादसा। ऑयल टैंकर फुटपाथ पर सोए खानदान पर चढ़ दौड़ा। 7 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। कालाबाग के माड़ी मोड़ के करीब 2 मोटरसाइकिलों में तसादुम। 3 नौजवान जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए।
कराची शारा फैसल पर कारसाज के करीब कार और मोटरसाइकिल की टक्कर, खातून जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी। कच्चे में पुलिस का ग्रैंड ऑपरेशन, ईद के रोज भी जारी। आरपीओ और डीपीओ रहीम यार खान भी जवानों के साथ ईद मनाने कच्चे पहुंच गए। अफसरान ने अहलकारों के साथ खाना खाया, ईदी भी तकसीम की। ऑपरेशन में अब तक 3 डाकू हलाक, 20 से जायद गिरफ्तार। उम्मीद रखूंगा कि आप लोग ईद के मौके पे दुश्मन के ऊपर जो है कड़ी नजर रखें। हमने इस खास दिन के मौका पर भी घर वालों से दूर रहकर अपने मुल्क की शर पसंदों से हिफाजत अपनों से दूर मशरकी और मगरबी सरहदों पर मामूर जवान ईद के मौके पर भी दिफाए वतन के लिए मुल्क दुश्मनों के सामने सीना सिपर। कौम की खुशियां पाक फौज की कुर्बानियों से वाबस्ता हैं। पाक आर्मी की मुहाफिज सियाचिन के बर्फ पोश पहाड़ों से लेकर बलूचिस्तान की संगलख चट्टानों तक, सिंध के तपते सहराओं से लेकर वजीरिस्तान के पहाड़ों तक अपनी ईद सरहदों की हिफाजत के लिए कुर्बान करते हैं। ड्यूटी पर मामूर अफसरान जवानों के हमरा ईद की नमाज अदा करते हैं। ईद की नमाज के बाद खाने का एहतमाम किया जाता है। कौमी टीम के स्टार फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी ईद के पहले दिन लैंड स्लाइडिंग से मुतासिर तूरखम बॉर्डर पहुंच गए। शाहीन अफरीदी ने ट्वीट किया, लैंड स्लाइडिंग की वजह से जानी और माली नुकसान हुआ। सिक्योरिटी और रेस्क्यू एहलकार बगैर आराम की मुसलसल 5 दिन से मुतासरीन की मदद कर रहे हैं। भारत को आलमी सतह पर एक बार फिर हजीमत का सामना। कतर में पकड़े गए भारतीय बहरिया के 8 साबिक एहलकारों पर जासूसी के मुकदमे का आगाज। भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान ने भी तस्दीक कर दी। भारतीय साबिक एहलकार कतर में एक दिफाई कंपनी में मुलाजिम थे, जिन पर आबदोज प्रोग्राम के बारे में खुफिया मालूमात एक मुल्क को इरसाल करने का इल्जाम है। मकबूजा कश्मीर में काबिज फोर्सेस की रियासती दहशतगर्दी, नमाज ईद भी अदा करने नहीं दी। श्रीनगर की तारीखी जामे मस्जिद में कश्मीरियों को नमाज ईद अदा करने से रोक दिया। काबिज भारतीय इंतजामिया ने मस्जिद के बाहर फौजी और पुलिस एहलकार तैनात कर दिए। कश्मीरियों के काबिज इंतजामिया के खिलाफ नारे। ईरान, भारत, बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया समेत दीगर मुल्कों में भी ईद आज मनाई जा रही है। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में सबसे बड़ा इज्तिमा। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में सुप्रीम लीडर अली खामनाई ने नमाज ईद पढ़ाई। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में ईद की नमाज में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अमरीका और यूरोप के बाज़ इलाकों में ईद उल फितर मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जा रही है। खुशी हम लोग ये फील कर रहे हैं, हम लोग अपना मुल्क बरादरान का साथ और हम लोग अपना सकाफत को इनके सामने लेके पूरा रमज़ान का महीने में हम लोगों ने ये चलाया। और एक नज़ारा भी होगा यूएई का ईद हम लोग पाकिस्तान में मना। कराची में मुत्तहिदा अरब अमारात की काउंसिल जनरल ने ईद पर अपनी रिहाइशगाह को अरब सकाफत में रख दिया। खूबसूरत खेमे लगाए, हरीसा से मेहमानों की तवाज़ो की। कराची का अमरीकी काउंसिल खाना भी ईद की खुशियों में शरीक, ईद की मुबारकबाद दी। पाकिस्तान में तैनात अमरीकी सिफारतकार डोनाल्ड ब्लूम की ईद पर पाकिस्तानियों को मुबारकबाद। पैगाम में कहा, दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने को पुरअज़्म है। सारे पाकिस्तानियों को ईद मुबारक। कौमी खिलाड़ियों ने मनाई ईद, फैंस को कराई दी। बाबर, फखर, हारिस, साइम और दीगर खिलाड़ियों ने तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की, ईद की मुबारकबाद दी। बाबर आजम ईद मनाने अपने पुराने मोहल्ले चले आए, लोगों से मिले। शादाब, ईद कैसे मनाते थे? कहते कि वो पिस्टा वगैरह हमने दोस्तों ने साथ रखी होती थी कि चलो नमाज पढ़ी और इधर से निकलना है। महल्ले महल्ले की ना गेम होती थी कि यार लड़ाई, आर्टिफिशियल गोली नहीं होती उसके साथ। आखिर में अगर गोली शोली खत्म हो गई, पत्थर भी फेंकते थे कि यार चलो ठीक है, जो भी है जीतना है। बचपन में हमने भी ईद पर नकली पिस्तौलें बहुत चलाई। कौमी टीम के नायब कप्तान शादाब खान की ईद स्पेशल स्पोर्ट्स रूम में गपशप। कहा, ईदी लेने में मजा है, देने में कहा।
दोस्तों ने मशवरा दिया घर में खुश रहना है तो ससुराल वालों का ज्यादा ख्याल रखो। बाबर की शादी से मुतालिक बोले वो कप्तान है तो शादी के मामले पर भी मनसूबाबंदी कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत ईद मुबारक। जानू तेरे नाल प्यार हो गया। जो ईद आए ना वो मेरे मुल्क के लिए बहुत अच्छी। ईद पर खुसूसी अरुण भाई जी जी हसन इज अ गुड ARY न्यूज लाया है ईद पर खुसूसी ट्रांसमिशन का तोहफा। तीनों दिन सुबह से शाम तफरीह और मजाक का भरपूर एहतमाम। बाखबर सवेरा में हनीफ राजा, नईम अब्बास रूफी, अबरारुल हक और वहाब रियाज ने बढ़ाई ईद की मिठास। प्रोग्राम V2 में फनकारों ने बिखेरे खूब कहकहे। होशियारियां में शामिल रही मनपसंद शख्सियात की होशियारियां। जुल्फी बुखारी ने कई राजों से पर्दा उठाया। याद रफ्ता विद बुशरा अंसारी में बूम बूम आफरीदी के चर्चे। वसीम बादामी ईद पर खेलेंगे मासूमाना खेल। सवाल ये है में सियासतदानों की दिलचस्प नोकझोंक। द रिपोर्टर्स और ऑफ द रिकॉर्ड ईद स्पेशल में भी नाजरीन के लिए है बहुत कुछ खास। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कुल आम वअंतुम तय्यबीन बिमुनासबत ईद उल फितर मुबारक। खला में ईद कैसे मनाते हैं? अमारती खलाबाज सुल्तान ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से ईद की मुबारकबाद दी। खलाबाज ने वीडियो में बताया स्पेस स्टेशन पर ईद मनाने का तजर्बा मुनफरिद है। स्पेस सेंटर में सुहेल नामी खिलौना भी ईद के रंग में रंग गया। स्टेशन का चार्ट दिखाइए जी। एक मिनट। ये क्या कर रहे हैं आप? सुनो, बुड्ढा घर पे है। हमारे घर के पड़ोस में इतने अफगानी आ गए हैं। परसों हमारे घर में एक नान भेजा उन्होंने, इतना बड़ा नान कि भाई असगर की बेटी जो है उसको गद्दा समझ के चुस हो गई। शादी कर लो जी, आपके मुंह में घी शक्कर। और आज तुम बहुत याद आए। हर दिल अजीज फनकार मोइन अख्तर को दुनिया से गुजरे 12 बरस बीत कर। 40 बरस पर मुहित करियर में मोइन अख्तर ने रेडियो, स्टेज, टीवी और फिल्म में अपने फन का लोहा मनवाया। मोइन अख्तर ने ARY डिजिटल के प्रोग्राम लूज टॉक में सैकड़ों किरदार अदा किए। उन्हें सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। इन खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद।